بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ترکی کے حوالے سے اس کی مکمل تاریخ، اس کا جائے وقوع، اس کی ثقافت اور اس کے علاوہ اسلام سے اس ملک کا کتنا گہرا تعلق ہے، وہ تمام باتیں آج کی ویڈیو میں شامل ہیں۔ ترکی دو براعظموں ایشیا اور یورپ میں واقع ہے۔ اس ملک کا 3% حصہ یورپ جبکہ 97% حصہ مغربی ایشیا میں آتا ہے۔ ترکی کا کل رقبہ 7,83,356 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا کا 36واں بڑا ملک ہے۔ 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق ترکی کی آبادی 8,08,10,525 افراد تھی، جو اسے دنیا کا 19واں بڑا ملک بناتی ہے۔ انقرہ ترکی کا دارالحکومت ہے، لیکن استنبول ترکی کا سب سے بڑا اور کاروباری شہر ہے۔ اس شہر کو تاریخ میں قسطنطنیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ترکی کے کل 81 صوبے ہیں، جن میں صوبہ استنبول، صوبہ انقرہ، صوبہ ازمیر، صوبہ بورسا، صوبہ کونیا، صوبہ دانا اور صوبہ اردو شامل ہے، جس کو غیر ملکی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ترکی کے 12 ایسے شہر ہیں جن کی آبادی 5 لاکھ افراد سے زائد ہے، جبکہ 1 لاکھ سے زائد آبادی والے شہروں کی تعداد 48 کے قریب ہے۔ دوستو، ترکی کی تاریخ کیا ہے؟ ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خطہ سب سے پہلے آباد ہونے والے خطوں میں سے ایک تھا۔ ترکی کا بیشتر حصہ اناطولیہ کے جزیرہ نما پر آتا ہے۔ اناطولیہ کے اس جزیرہ نما پر 60,000 سال پرانی زندگی کے آثار بھی ملے ہیں، جنہیں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پر بھی شامل کیا گیا ہے۔ اگر ترکی کے اہم اور تاریخی ادوار کی بات کی جائے تو ترکی کو 334 قبل مسیح میں یونان سے سکندر نے فتح کر لیا تھا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کے جانشین اس کی سلطنت کو نہ سنبھال سکے اور یہ سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد یونانیوں نے یہاں سلاویسیڈ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 63 عیسوی تک قائم رہ سکی۔ انہی کی حکومت کے درمیان میں کچھ عرصہ یہاں آرمینیوں نے بھی حکومت کی تھی۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو عروج دیا۔ انہوں نے پورا اناطولیہ حتیٰ کہ شام، مصر، اردن اور فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے ترکی کو اپنا مسکن بنا لیا اور یہاں دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں جاری ہو گئیں۔ 300 عیسوی کے لگ بھگ اس پورے خطے میں مسیحیت کو اپنا لیا گیا اور 330 عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب بنا دیا۔ یہی وہ بادشاہ تھا جس نے قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے اس شہر کا نام بازنطین ہوا کرتا تھا، مگر آج کل اس شہر کو استنبول کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ترکی کے بعد علاقوں میں رومی سلطنت 330 عیسوی سے لے کر 1453 عیسوی تک قائم رہی، مگر بعض علاقوں میں جن میں شام اور ترکی کے مشکلی حصے شامل تھے انہیں مسلمانوں کی جانب سے فتح کر لیا گیا تھا۔ مشرقی اور وسطی اناطولیہ پر سلجوقی سلطنت قائم ہو گئی، جبکہ مغرب میں رومی سلطنت قائم تھی۔ سلجوقی سلطنت کے زوال پر ان کی باقیات میں سے عثمانیوں نے جنم لیا اور یہاں عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ وسطی ایشیا سے آئے مسلمانوں نے اس سلطنت کو وہ 4 چاند لگائے کہ اسے مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت بنا دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا صحیح دور 631 سال کا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں عثمانی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور اور مضبوط ترین سلطنت تھی۔ اپنے زوال کے وقت سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ جرمنی کی ناکامی کے بعد معاہدہ صفر کیا گیا، جس کی ترکوں نے خوب مخالفت کی۔ فتح پانے والے ممالک نے سلطنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے سلطنت پر قابض ہو گئے۔ 9 مئی 1919 کو ترکوں نے عسکری کمانڈر مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں جنگ آزادی کا اعلان کر دیا۔ 18 ستمبر 1922 کو ترکوں نے تمام فوجیوں کو ترکی سے نکال دیا تھا۔ 1 نومبر 1922 کو ترک پارلیمان نے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ یوں مسلمانوں کی 631 سالہ عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔
24 जुलाई 1923 को मुआहदा लौज़ान किया गया। ये वही मुआहदा था जिसने तुर्की को बांध कर रख दिया था। ये मगरबी ममालिक की मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश थी जो कामयाब हो गई। इस मुआहदे में तुर्की पर 100 सालों के लिए पाबंदियां लगा दी गई थीं। इन पाबंदियों में तुर्की अपने तयशुदा हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता था। इस मुआहदे में सल्तनत का खात्मा और सुल्तान को अपने अजीज़ों के साथ जिला वतन कर दिया गया था। खिलाफत की मुकम्मल अमलाक और सुल्तान की तमाम अमलाक जब्त कर ली गई थी। तुर्की को 100 सालों के लिए पेट्रोल के लिए अपने मुल्क के किसी दूसरे मुल्क में ड्रिलिंग करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। यानी 100 सालों के लिए तुर्की पेट्रोल इंपोर्ट करने का पाबंद बना दिया गया था। तुर्की को एक सेकुलर स्टेट बनाते हुए इस्लाम और खिलाफत से इसके ताल्लुक पर कतगन लगा दी गई। खास फोर्स को आर्मी समंदर का हिस्सा बना दिया गया और यहाँ से गुजरने वाले किसी भी बेड़े से तुर्की टैक्स वसूल न कर सकेगा। ये इस मुआहदे की अहम शराइत थी। इस मुआहदे पर दस्तखत स्विट्जरलैंड में लाउज़ान के मकाम पर हुए थे, इसलिए इस मुआहदे को मुआहदा लाउज़ान के नाम से पुकारा जाता है। इस मुआहदे के बाद 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से सारी दुनिया ने कबूल कर लिया और यही दिन तुर्की का कौमी दिन कहलाया जाने लगा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जिन्हें बाद में अतातुर्क का खिताब मिला, जिसके मायने हैं तुर्कों का बाप, इस बंदे ने तुर्की को बरतानिया, फ्रांस और दीगर उन ममालिक के कब्जे में जाने से रोका था। दूसरी जंग अजीम में तुर्की तकरीबन गैर जानिबदार रहा, लेकिन जंग अजीम दोम के बाद होने वाली अमेरिका और सोवियत यूनियन की सख्त जंग में तुर्की ने अमेरिका और उसके हामियों का साथ दिया, जिसके बदले में तुर्की की इमदाद की जाती रही। जुलाई 1974 में कब्रस में तुर्क मुसलमानों पर मसीही आबादी की जानिब से मजालिम शुरू हो गए, जिसके नतीजे में तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस हुई, जिसे अब तक तुर्की के अलावा दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं माना है। जबकि जनूबी कब्रस, जिसे जमहूरिया कब्रस का नाम दिया गया क्योंकि ये एक मसीही आबादी वाला हिस्सा था, इसे आज़ाद होने के अलावा यूरोपीय यूनियन की रुकनीत भी हासिल हो चुकी है। तुर्की में एक ऐसा वक्त आ गया था कि टर्किश लोग तुर्की को यूरोप बनाने के हक में उठ खड़े हुए थे। तुर्की में हिजाब करने तक पर पाबंदी लगा दी गई थी, जो कि सब मगरबी साजिशों का नतीजा था। 1992 में इस्तांबुल के नाजिम बनने वाले रजब तैयब एर्दोगान अवाम में इस कदर मकबूल हुए कि उन्होंने 2002 में अपनी हुकूमत इश्तराक से कायम करने की कोशिश की, मगर उन्हें 1998 में इस्लाम और मुसलमानों के हक में तकरीर करने के जुर्म में वजीर आज़म बनने से रोक दिया गया। इसके बाद इनके नायब अब्दुल्ला गुल को वजीर आज़म बनाया गया। ताहम इस हुकूमत में आइन में तब्दीली करके इनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया और अब्दुल्ला गुल ने वज़ारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया और तैयब एर्दोगान मुल्क के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। नवंबर 2007 में होने वाले इलेक्शन में इस पार्टी ने अक्सरियत से अपनी हुकूमत कायम की और सन 2014 से तैयब एर्दोगान तुर्की के 12वें सदर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तुर्की की मईशत की। तुर्की की करेंसी को टर्किश लीरा कहा जाता है। इनका एक लीरा पाकिस्तान के 28.89 रुपयों के बराबर है। तुर्की पाकिस्तान से 3,330 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। तुर्की की मजमूई आमदनी $2.249 ट्रिलियन हैं, तो इसे मईशत के हवाले से दुनिया भर में 13वें नंबर पर लाती है, जबकि तुर्की में फ़ीकस मजमूई आमदनी $27,634 है, जो इसे दुनिया में 45वें नंबर पर लाती है। इस्लाम तुर्की का सबसे बड़ा मजहब है, जिसे मुल्की आबादी का 82% लोग मानते हैं। 2% लोग मसीहत के मानने वाले, 7% ऐसे हैं जिनका कोई भी मजहब नहीं। 2% दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के अलावा बाकी आबादी का अभी तक मजहब वाज़े नहीं किया गया। दोस्तों, तुर्की वो दूसरा मुल्क है जिसने 1963 में यूरोपीय इत्तेहाद बनने से मुताल्लिक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। 1987 में तुर्की ने
यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने की दरख्वास्त की थी, जिसे 1989 में ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया था कि तुर्की में अभी मज़ीद सियासी और इक़्तिसादी इस्लाहात की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन ने अक्टूबर 2005 में तुर्की को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने का उम्मीदवार करार दिया था। तुर्की की 18.2% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है, 26.8% इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जबकि 55% आबादी सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुलाजमत इख्तियार किए हुए है। तुर्की ने सयाहत को अपने मुल्क में लाने के लिए बहुत सी इस्लाहात की हैं। ये तैयब रजब एर्दोगान की पॉलिसियों का ही नतीजा है कि जो हर साल करोड़ों अफराद तुर्की का सफ़र कर रहे हैं। तुर्की में 2017 में 3 करोड़ 20 लाख गैर मुल्कियों ने सफ़र किया था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की को कितना फ़ायदा हासिल हुआ होगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 1455 ईस्वी को सल्तनत उस्मानी के दौर में ग्रैंड बाज़ार की बुनियाद रखी गई थी। तब इसका नाम कुछ और था, मगर आज इस बाज़ार को इसी नाम से दुनिया में मकबूलियत हासिल है। इस बाज़ार की 64 गलियां हैं, 4000 से ज़ायद यहाँ दुकानें बनाई गई हैं और 25,000 से ज़्यादा वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर तुर्की की सयाहत की बात की जाए तो इस्तांबुल में पिछले 3-4 सालों से आने वाले सयाहों की तादाद हर साल 3 करोड़ से ज़ायद नोट की जाती है। इन 3 करोड़ में से 1 करोड़ अफराद हर साल इस बाज़ार का सफ़र लाजमी करते हैं। अरारात के पहाड़े तुर्की के सबसे बुलंद पहाड़ हैं। ये वही पहाड़ हैं जहाँ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार भी दरियाफ्त हुए थे। बहिरा अस्वद की तह में इंसानी आबादी के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं, जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले यहाँ भी दुनिया आबाद थी। तारीख़ी तहकीकात से ये मालूम होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान का ज़माना भी यही हो सकता है। इसी तूफ़ान से बहरे अस्वद की सतह बुलंद हुई। तुर्की में 130 ऐसी पहाड़ियाँ मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से ज़्यादा है। ज़िंदगी में अगर आपको कोई कौम अपने मुल्क से प्यार करती हुई नज़र आए तो वो टर्किश कौम होगी, जो अपने मुल्क से मोहब्बत का इज़हार अपनी इमारतों पर कौमी परचम लहराकर करते हैं। तुर्की में शायद ही कोई ऐसी इमारत हो जहाँ आपको तुर्की का परचम नजर न आए। फेसबुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक US और UK के बाद तुर्की में सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़र्स पाए गए हैं, यानी फेसबुक यूज़र्स के हवाले से दुनिया भर में तुर्की तीसरे नंबर पर आता है। तुर्की का लफ्ज़ इटालियन ज़बान के लफ्ज़ टर्किया से लिया गया है। इटालियन ज़बान में टर्किया अनातोलिया को कहा जाता है। तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बड़े आज़मों पर फैला हुआ है। इस शहर का 3% हिस्सा यूरोप में जबकि 97% एशिया में आता है। तुर्की को जंग अज़ीम अव्वल के फातिहीन से आज़ादी दिलाने वाले मुस्तफ़ा कमाल पाशा वो शख्स था जिसने शराब पर पाबंदी लगाई, इस्लामी सल्तनत की पाबंदी को ख़त्म कर दिया था, इस्लामी कैलेंडर को ख़त्म करते हुए मुल्क में ईसवी कैलेंडर का इस्तेमाल करवाया, जुम्मे की तातील को ख़त्म करते हुए इतवार को छुट्टी का दिन करार दिया। टर्किश अल्फ़ाबेट्स को अरबी से रोमन ज़बान में तब्दील करवाया गया, हत्ता कि अज़ान की आवाज़ भी अरबी के बजाय टर्किश लैंग्वेज में सुनाई देनी जाने लगी। तुर्की अपनी मसाजिद के हवाले से दुनिया भर में अपना एक अलग मुकाम रखता है। मुस्लिम ममालिक से हर साल लाखों की तादाद में सय्याह इन मसाजिद को देखने की गर्ज से आते हैं। तुर्की में कायम मसाजिद की तादाद 83,000 के करीब है, जो पर कैपिटा के हवाले से दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तुर्की के सूबे अनातालिया में वाक़े अनातालिया शहर दुनिया का वो शहर है जिसके साफ शफाफ पानी और साफ शफाफ बीचेस को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। दोस्तों, तुर्की दुनिया के 1/4 फूल पैदा करता है। तुर्की की वादी में 70 से 75% अनातोलियन तुर्क लोग मौजूद हैं, 18% के करीब कुर्द लोग और 7 से 12% दूसरे कबीलों के लोग मौजूद हैं। रेसलिंग तुर्की का कौमी और मकबूल तरीन खेल है। ये तुर्की में बहुत शौक से खेला और देखा भी जाता है। इस खेल के अलावा तुर्की में खेले जाने वाले मशहूर खेल फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, बीच हैंडबॉल, फिशिंग, फ्लाइंग, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग हैं।